Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem C from Codeforces yesterday round, that is 798 division 2. Okay, so this problem is from DP and you can say from graph or tree. Okay, but before starting discussion over this problem, over approach and solution of this problem, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talk is Newton School, just go subscribe this YouTube channel where I am posting regular editorial videos of all the online contests which you give in your lead code, Codeforces, Art Coder also, and also videos related to blockchain and other doubts you have in your daily life related to industry or your placements or internships. Okay. Also, if you haven't checked Newton School pay after placement program, in which they will train you first and they will like also get you placed in different companies, and most amazing thing, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any company. You can just go to the link in description and check their pay after placement program. Okay, I'll discuss over this pay after placement program in the end of the video some more, but before that, let's just start today's video. Infected tree. Byteland is a beautiful land known because of its beautiful trees. Misha has found a binary tree with n vertices, so you can highlight this. It is a binary tree numbered 1 to n and a binary tree. ये तुम्हारी जो characteristics of binary tree हैं वो given है, ठीक है. That each vertex in a binary tree can have maximum 3 degree and जो vertex है with number 1 it has at most 2 degrees. Okay. Unfortunately द रूट गॉट इन्फेक्टेड. जो उसका रूट है वो इन्फेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली. द फॉलोइंग प्रोसेस हैपेंस एन टाइम्स. ओके, जो नीचे प्रोसेस गिवन है वो एन टाइम्स होगा एग्जैक्टली. मिशा ईदर क्लोजेस अ नॉन इन्फेक्टेड एंड नॉट डिलीटेड वर्टेक्स एंड डिलीट्स इट विद ऑल एजेस विच हैव एन एंड इन द वर्टिसेस और जस्ट नथिंग डज नथिंग. ओके, तो मिशा क्या करेगी, हर एक एंड एट टाइम में से एक तुम्हारी नॉन इन्फेक्टेड और नॉट डिलीटेड वर्टेक्स लेगी, उसको हटा देगी और ऑब्वियसली जब वो हटेंगी तो उससे जितने भी रिलेटेड एजेस थी वो भी हट जाएंगे, ठीक है. और अदरवाइज उसको डिलीट नहीं करेगी, और जब डिलीट नहीं करेगी इन दैट केस द इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू ईच वर्टेक्स दैट इज कनेक्टेड बाय एन एज टू एनी ऑलरेडी इन्फेक्टेड वर्टेक्स. ऑल ऑलरेडी इन्फेक्टेड वर्टिसेस रिमेन इन्फेक्टेड, ठीक है. तो सिंपल सी 2 लाइन गिवन है और ये जो चीज़ें हैं ये n टाइम्स होंगी. ओके, एज मिशा डज नॉट हैव मच टाइम टू थिंक, प्लीज टेल हिम व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ही कैन सेव फ्रॉम द इन्फेक्शन. ओके, फाइन. इफ यू सी द constraints are obviously 3 into 10 is 5. We can afford any approach of O of n or n log n. Okay, and in the end you need to print output the maximum number of vertices Misha can save. ठीक है. If you see some test cases, here are they. In second test case, if we delete vertex 2, we can save 3 and 4. Okay, तो वो simply क्या करेगी, like in the starting or in the beginning only one vertex जो है infected है, ठीक है. तो वो उसी समय क्या कर देगी, 2 को हटा देगी वहाँ से, और 2 को हटाने के बाद ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज हट जाएगी, सॉरी ये वाली एज, ये वाली हट जाएगी, और इस तरह से बाकी जो n-1 ऑपरेशंस हैं उनमें वो कोई भी डिलीट नहीं करेगी, ठीक है. तो 1 ऑपरेशन में उसने डिलीट किया, n-1 ऑपरेशन में कुछ नहीं किया, और हर बार कोई भी नई एज इफेक्ट नहीं होगी या कोई नया वर्टेक्स इफेक्ट नहीं होगा, और हमारे पास अनइफेक्टेड कितने नोड्स रह जाएंगे या फिर वर्टेक्स, 4 and 3, दैट इज 2. ठीक है, सेकेंड टेस्ट केस का आंसर 2. नाउ इफ आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन लिटिल बिट मोर. बेसिकली पिछले टेस्ट केस में तुमने देखा कि जो रूट था, ठीक है, 1, उसका जो चाइल्ड था खाली एक था, दैट इज 2, 3 and 4. ये 2 था, ये 1 था, ठीक है. तो तुम क्या कर सकते थे, इसको यहाँ से हटा दिया. अब तुम सारे के सारे जो भी हैं वो अनइफेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है. बाकी n-1 ऑपरेशंस में तुम कुछ मत करो, और जितने भी बचे हुए वर्टेक्स हैं पूरे ग्राफ में या पूरे ट्री में, बाइनरी ट्री में, वो अनइफेक्टेड ही रहेंगे. तो इफ़ इन एनी केस यू कैन सी दिस इज़ द एच केस, अगर तुम्हारे रूट का सिंपल एक चाइल्ड है, ठीक है, उस केस में तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ nodes or vertex in your binary tree minus 2.
वन इज़ फॉर रूट एंड वन इज़ फॉर द नोड यू रिमूव्ड और वर्टेक्स यू रिमूव्ड, ठीक है, फाइन। अब दूसरा केस कौन सा हो सकता है? अ केस व्हेन तुम्हारे रूट के दो चाइल्ड्स हैं। सॉरी, अब ये तुम्हारा रूट है और ये इनिशियली इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, एक बार में एक ही चीज़ हटा सकते हो, ठीक है। या तो तुम ये हटाओगे फर्स्ट टाइम में, या तो ये हटाओगे। अब तुम कौन सा हटाना, सपोज तुमने पहले चूज़ किया ये वाला हटाना, ठीक है, तो तुमने ये वाला हटा दिया फर्स्ट ऑपरेशन में, बट उतने समय में ये वाला इन्फेक्ट हो जाएगा, तो राइट इनिशियली ये इन्फेक्ट और उसके बाद ये भी इन्फेक्टेड, ठीक है, फाइन। जैसे ही तुम फर्स्ट ऑपरेशन में ये वाला हटा दोगे, इसके नीचे के जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो सब तुम्हारे अनइन्फेक्टेड, राइट, फाइन। बट अब जैसे कि ये वाला इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, तो अब तुम्हारा अगर तुम इनिशियली देखो तो तुम्हारी कंडीशन कैसी बन गई है, तुम्हारी कंडीशन जो स्टार्टिंग में थी कि तुम्हारे पास एक रूट इफेक्टेड है और बाकी सारे अनइफेक्टेड है, वैसे ही हो गया है कुछ इस सब ट्री के लिए, अगर तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो वो चीज़, ठीक है, जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि तुमने एग्जैक्टली पहले स्टेप में क्या किया। तुमने पहले स्टेप में ये वाला रूट, ये वाला वर्टेक्स जो था इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, जैसे ही हटाया इसके नीचे के जितने भी वर्टेक्स थे वो सारे अनइफेक्टेड हो गए, तुम्हारे आंसर में ऐड हो जाएंगे। बट जो तुम्हारा बगल का वर्टेक्स था वो इन्फेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब तुम्हारी जो इस सब ट्री की बात चल रही है, इस सब ट्री के लिए सेम केस बन गया है और सेम केस में तुम्हारा रूट इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, और बाकी सारे अनइन्फेक्टेड है। और अब तुम्हारे सेम सब ट्री में जो तुमने पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया था वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, बट अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस n-1 हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब तुम अगेन इसमें दो चॉइसेस मिलती हैं, दैट ईदर यू कैन रिमूव दिस वन और दिस वन, ठीक है, तुम कोई भी रिमूव करो, सेम चीज़ है। तुमने सपोज ये वाला रिमूव कर दिया तो तुम्हारा जो ये वाला नोड है, ये वाला नोड तुम्हारा, अगर तुमने ये रिमूव किया, ठीक है, तो ये रिमूव करने से तुम्हारी ये नोड हट जाएगी, ठीक है, और अगली बार में तुम्हारा ये इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये रिमूव कर दिया था और ये इन्फेक्ट हो गया, तो तुम्हारा आंसर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसके नीचे कोई और नोड्स नहीं है या वर्टेक्स नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे और होते तो उस केस में तुम्हारे आंसर में दो ऐड हो जाता, राइट। तो तुम कहीं ना कहीं देख रहे हो कि जो हमारी पेरेंट प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है, बट कोई छोटे फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, जो हमारा पूरा ग्राफ था वो छोटे छोटे फॉर्म्स में रिपीट होके हमें मिल रही है, ठीक है। यहाँ के लिए अभी एक इतना इंट्यूशन काफ़ी है। अब दूसरी चीज़ तुम यहाँ पे क्या देखोगे कि मैंने पहली चीज़ बोली थी तुमसे कि इन एनी केस मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा लेफ्ट वर्टेक्स था रूट का, चाइल्ड का, ठीक है, मैंने वो वाला हटा दिया। मैंने बोला कि मैंने ये वाला हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट चॉइस। दूसरी चॉइस तुम्हारी क्या हो सकती है कि तुम ये वाला हटाओ यहाँ से, इसको हटाया, ठीक है, इसको जैसे ही हटाओगे ये सारे नोड्स जो हैं या वर्टेक्स हैं ये तुम्हारे आंसर में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अब दोबारा एक पेरेंट प्रॉब्लम की सब्सिडरी प्रॉब्लम मिल जाएगी कि अब तुम्हारे पास एक रूट इन्फेक्टेड है इस सब ट्री का और तुम्हें इन सब में से ये बताना है कितने मैक्सिमम बचा सकते हो, ठीक है। तुम पहले क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास एक पूरा ट्री था, बाइनरी ट्री, और तुम ये बता रहे थे कि कितने मैक्सिमम बचा सकते हो, ठीक है। अब तुम सब्सिडरी प्रॉब्लम में क्या कर रहे हो, अब तुम्हारे पास ये सब ट्री है और तुम्हें ये बताना है इसमें से टोटल कितने बचा सकते हो। जितने भी बचा सकते हो वो तुम्हारे कहाँ ऐड हो जाएंगे, आंसर में, प्लस ये वाले नोट्स के साथ, दैट इज़ 2, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो तुम कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि मेरे पास अगर जो रूट है उसके दो चाइल्ड्स हैं, मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं, राइट। पहले वाले जब रूट का सिंगल एक चाइल्ड है उस केस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं। दो चाइल्ड के केस में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ईदर यू डिलीट फर्स्ट चाइल्ड और ईदर यू डिलीट सेकेंड चाइल्ड। अगर तुम फर्स्ट चाइल्ड डिलीट करते हो तो फर्स्ट चाइल्ड डिलीट करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा,
फर्स्ट चाइल्ड डिलीट करने के बाद नंबर ऑफ नोड्स इन योर लेफ्ट चाइल्ड, मैं थोड़ा नीचे आंसर लिखता हूँ, ठीक है। सपोज इन केस तुम फर्स्ट चाइल्ड डिलीट करते हो, आंसर नंबर ऑफ नोड्स इन फर्स्ट चाइल्ड प्लस नंबर ऑफ सेव्ड वर्टेक्स, नोड्स और वर्टेक्स एक ही चीज़ है, फ्रॉम सेकेंड चाइल्ड सॉरी, ये हो गया तुम्हारा पहला केस। दूसरा केस क्या है, वाइसे वर्सा, ठीक है, कि नंबर ऑफ नोड्स जब तुम सेकेंड चाइल्ड डिलीट कर रहे हो इन सेकेंड चाइल्ड प्लस नंबर ऑफ सेव्ड नोड्स फ्रॉम फर्स्ट चाइल्ड, राइट। तुम्हें इन दोनों का क्या चाहिए, मैक्सिमम, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें इंट्यूशन कैसे मिला, चॉइस है तुम्हारे पास, तुम्हें किसी चीज़ में चॉइस के बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तुम यहाँ पे डीपी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इंट्यूशन कहाँ पे मिला होगा कि जो तुम्हारी पेरेंट प्रॉब्लम है दैट इज़ मैक्स निकालने की, वो तुम्हारी कहीं ना कहीं सब प्रॉब्लम्स में भी डिवाइड हो रही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे डीपी का यूज़ करता हूँ तो मैं डीपी ऑफ आई को कैसे बना सकता हूँ, मेरी जो पेरेंट और सब प्रॉब्लम्स डिवाइड हो रही हैं उसमें, ठीक है, कि मैं अपनी सब प्रॉब्लम्स का आंसर निकालूंगा और उससे अपना पेरेंट का बिल्ड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं डीपी ऑफ आई को बोलूँ नंबर ऑफ चाइल्ड्स आई सेव्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड्स इफ आई इज द रूट ऑफ द वर्टेक्स, रूट है तुम्हारे बाइनरी ट्री का, ठीक है, तुम्हारे सब ट्री का या बाइनरी ट्री का रूट है, और नंबर ऑफ चाइल्ड्स दैट आई सेव्ड फ्रॉम दैट ith रूटेड सब ट्री और बाइनरी ट्री, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई ये बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे ऑल्टर कर सकता हूँ इस चीज़ को, सिंपली मैक्स ऑफ नंबर ऑफ नोड्स इन फर्स्ट चाइल्ड लेट से एक्स एस, ठीक है, प्लस डीपी ऑफ ith चाइल्ड जो भी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, और तुम्हारे राइट सब ट्री में नंबर ऑफ चाइल्ड्स एस डैश प्लस डीपी ऑफ आई डैश चाइल्ड, ठीक है। तो तुम ऐसे अपना डीपी निकाल सकते हो, ये तुम्हारा डीपी ऑफ आंसर हो जाएगा या डीपी ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या निकाल लो, डीपी ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब डीपी ऑफ 2 और 3 तुम्हें वापस से बिल्ड करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे तुम कुछ रिकर्जन वगैरह या कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई एक्सप्लेन्ड यू द कंप्लीट अप्रोच कि 2 केसेस हो सकते हैं, जब रूट का एक ही चाइल्ड है, जब रूट के 2 चाइल्ड है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा सॉरी, हेयर इज द कोड। तो आई यूज 2 थिंग्स, पहली चीज़ डीएफएस से मैं ये काउंट करूँगा कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं तुम्हारे सब ट्रीज़ में, ठीक है, और जैसे ही मुझे नंबर ऑफ नोड्स मिल गए मैं उसकी डीपी की स्टेट अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने बाइनरी ट्री का इनपुट ले लिया। अब सबसे पहले ये दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इनको एन यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू नंबर ऑफ नोड्स, एस आई क्या है यहाँ पे तुम्हारा साइज़, ठीक है, और डीपी तुम्हारी डीपी एरे, फिर ये जो तुम्हारा है ये है तुम्हारा बाइनरी ट्री, और ये जो है तुम्हारा ये विजिटेड एरे फॉर डीएफएस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बाइनरी ट्री का इनपुट ले लिया, फिर डीएफएस ऑफ 1 कॉल कर दिया सिंपली। अब डीएफएस ऑफ 1 मैंने क्यों कॉल किया, क्योंकि मैं रूट से कॉल कर रहा हूँ डीएफएस को, ठीक है। उस डीएफएस के अंदर मेरे नंबर ऑफ नोड्स ऑफ सब ट्रीज भी अपडेट होते जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे मेरा जो डीपी एरे है वो भी अपडेट होता जाएगा, और इन द एंड मुझे सिंपली क्या प्रिंट करना है, डीपी ऑफ 1 नंबर ऑफ चाइल्ड्स आई सेव्ड ऑन ith रूटेड सब ट्री, ठीक है, फाइन, सिंपली। अब डीएफएस को कॉल किया, विजिटेड ऑफ ए को ट्रू किया मैंने, और साइज ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया, यहीं पे खुद को काउंट किया, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले लिया, तुम कह सकते हो टू काउंट नंबर ऑफ चाइल्ड्स, ठीक है। कैसे अपडेट होगा यहाँ पे बताता हूँ। अब मैंने उसके चाइल्ड्स में, रूट के चाइल्ड्स में गया, अगर वो विजिटेड नहीं है तो सिंपली उसके लिए भी डीएफएस कॉल कर दो, ठीक है, फाइन। अब डीएफएस पूरा कंप्लीट होने के बाद तुम सिंपली क्या करोगे, साइज एरे तुम्हारी अपडेट हो चुकी होगी ऑब्वियसली,
ठीक है। तो DFS पूरा कंप्लीट होने के बाद जो भी तुम्हारा चाइल्ड था रूट का, तुम उसको सिंपली कहाँ पुश कर दोगे, इसमें अपनी लेंथ में, ठीक है। रूट के चाइल्ड को पुश कर दिया और साइज ऑफ रूट में क्या ऐड हो जाएगा, साइज ऑफ x, क्योंकि x a का चाइल्ड था, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन a जो भी प्रेजेंट होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे और ये तुम्हारा साइज ऑफ सब ट्री हर बार हर इंडेक्स के लिए अपडेट होता जाएगा सिंपली, ठीक है। ये DFS है सिंपल। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्टडी दैट सेपरेटली। इन द एंड मैंने रूट के कितने थे वो सिंपली पता लगाया। इफ़ s इज इक्वल्स टू 1 है, अगर रूट का 1 ही चाइल्ड है तो मुझे सिंपली क्या करना है, dp ऑफ a इज इक्वल्स टू dp s ऑफ s साइज ऑफ a माइनस 2, ठीक है। एक तो वो खुद इन्फेक्टेड था वो, और जो उससे जस्ट बाद कनेक्टेड वाला था। ऐसे तुम्हें इसको चीज़ को देखना है, ठीक है। ये रूट है अगर, और ये है ऐसा, और इसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है। ये चाइल्ड है ही नहीं, तो साइज़ में मैंने क्या स्टोर किया, ये सारे नोट्स। तो साइज़ में से 2 चले जाएंगे, एक ये वाला जो खुद इन्फेक्टेड था और जो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, सिंपल। जब साइज इज इक्वल्स टू 2 है उस केस में तुम्हें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड का वैल्यू लेना है, दैट इज x और y, ठीक है। और dp ऑफ a और d ये कैसे अपडेट हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, जब तुम्हारी फर्स्ट चॉइस है कि तुमने लेफ्ट चाइल्ड को निकाल दिया, ठीक है, और राइट चाइल्ड से मैक्सिमम नोट्स जितने तुम बचा सकते हो वो ले लिए, या फिर राइट चाइल्ड को निकाल लिया और लेफ्ट चाइल्ड से जितने नोट्स बचा सकते हो वो ले लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, मैक्स ऑफ s ऑफ i, s ऑफ s साइज ऑफ x सब ट्री, ठीक है, -1, क्योंकि तुम ऑब्वियसली उससे वो वाला नोड निकालने वाले हो, ठीक है। और साइज़ में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, बेसिकली साइज़ में मैं नंबर ऑफ नोड्स की जगह मैं टोटल साइज ऑफ सब ट्री स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए -1 किया है। एंड प्लस dp ऑफ y, जितने नोट्स मैं yth रूटेड सब ट्री से बचा पाऊंगा। अदरवाइज सेकेंड चॉइस कि साइज ऑफ y -1 प्लस dp ऑफ x, जितने नोट्स मैं xth रूटेड सब ट्री से बचा पाऊंगा, ठीक है। ये मेरा पूरा DFS कंप्लीट हो गया एंड इन द एंड आई विल सिंपली गेट dp ऑफ 1 में अपना आंसर, ठीक है। थैंक यू guys for watching this video. If you have any doubt you can ask me in comment section. Again I will explain you in brief in comment section. In the end, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program, just go check their Pay After Placement program. And if you want to check their insights, like how many students they have already get placed, what is their highest CTC, highest package, average placement, partners which partner companies which they have partnered with, placement rate, and insights of students which have already get placed via Newton School, you can just go to Newton School website and explore it more. Okay. तुम्हें सारी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर मिल जाएगा, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट इन दैट। और यू कैन जस्ट इन द एंड, अगर तुमने यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज न्यूटन स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया, यू नो ऑलरेडी व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।